So this chapter deals with the process called electrolysis, which establishes a relationship between electrical energy and chemical change. The word electrolysis is made up of two words: electro, meaning flow of electrons or electricity, and lysis means separating, that is, bringing about a chemical change. In a substance by passage of electricity. So electrolysis is exactly opposite of chemical combination. For example, chemical combination में क्या होता है? Na plus Cl minus, they come together to form. This is your chemical change. Electrolysis में क्या होता है? NaCl gives Na plus Cl minus. It's exactly reverse of what we used to study till now, or what we are studying even in class 10. जितना भी हमने चैप्टर्स पढ़ा है, किसी ना किसी फॉर्म में केमिकल चेंज से हम लोग डील करते हैं, केमिकल इक्वेशन से. बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द रिवर्स. वी हैव टू फोकस ऑन द रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थोड़ी अलग होने वाली है. अच्छा, this is not electrolysis. Let me give you the bigger picture na, as we are studying now. You know what is this known as? इसका मतलब क्या है? ये तो chemical change है, chemical change या फिर combination reaction. What is this? हाँ? Dissociation बोलते हैं इसको. Dissociation. आयंस डिसोसिएट हो गए पानी में डालने से ही. ये तो फर्स्ट स्टेप है. ठीक है, इसके बाद होता है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है? Na प्लस बन गया हमारे पास, ये पॉजिटिव आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट? तो ये कहां पे जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे. कहां पे जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड. उसका नाम क्या है? कैथोड. कैथोड पे जाएगा. सो एट कैथोड ये ट्रेवल करेगा और कैथोड पे जाके Na प्लस विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम Na. मतलब आयन से क्या बना? एटम. आयन से एटम बना. ठीक है, Cl माइनस कहां पे जाएगा? एट एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा. Cl माइनस वहां पे जाके क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा? Cl, एटम. अगेन आयन किस में कन्वर्ट हुआ? एटम. ये है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस इज कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू एटम. बट केमिकल चेंज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आयंस होने चाहिए, नहीं तो NaCl बनेगा कैसे? बनेगा क्या? मेरे पास अगर एक सोडियम का एटम है, क्लोरीन का एटम है, तो कैन आई मेक सोडियम क्लोराइड? नो. द सोडियम एटम has to lose one electron and has to become Na plus. Chlorine atom has to gain one electron and become Cl minus. फिर जाके Na plus और Cl minus साथ में आके NaCl बनता है. So chemical change overall is a conversion of atom into ions and then combination into a molecule or a compound, ionic compound. But electrolysis is conversion of ions into atoms and then migrating and depositing or liberating at a respective electrode. That is what we have to study. We are more interested in this thing. But that too after dissociation. Dissociation के बाद. Are you getting the bigger picture? What we have to study about? ठीक है. So जितने भी कॉन्सेप्ट हमने केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के बारे में पढ़े, हमें पूरे रिवर्स कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं.
because electrolysis is not your usual chemical change. Many substances allow electricity to pass through them and many do not. It has also been found that all the substances allowing passage of electricity do not undergo chemical change. Most metallic elements like copper, aluminum, iron, and all alloys, whether in solid state or in molten state, allow electric current to pass through them without undergoing any chemical change. ये सिर्फ किस में होता है? मेटालिक एलिमेंट्स में होता है. उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए. नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, like sulfur, phosphorus, etc. do not conduct electricity. Therefore, metals and alloys are called conductors and non-metals are called non-conductors or insulators of electricity. The conduction of a current by a conductor is due to the flow of electrons. Insulators do not possess mobile electrons. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उससे पहले मैं और एक चीज पूछना चाहता हूं. मेटल्स में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ, नहीं इलेक्ट्रोलाइट, नॉट दिस वन, एनी इलेक्ट्रोलाइट. एनी इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ molten or aqueous solution of any substance. Any substance in molten or aqueous solution state. Yes. हाँ. यहाँ का या वहाँ का? So the reason behind conduction of electron and metals is free electrons. What about electrolytes? Ions, right? Which ions? ये जो dissociation से ion बने ना यहाँ पे, these ions. These ions are the reason कि electricity conduct होती है. If there are no ions, will the electricity be conducted? No. Without ions, it's not possible for the conduction of electricity. Metals में electrons always flow in a particular direction. What is that direction? From a terminal at higher potential to a terminal at lower potential, है ना? Higher to lower potential electrons flow करते हैं, right? Electrolyte में there is no potential as such. There are two electrodes, one positive and one negative. Electric current is a two-way phenomena in electrolysis. Two-way मतलब a stream of positively charged ions moving towards negative electrode is also said to be a form of electric current. A stream of negatively charged ion moving towards positive electrode is also said to be a stream of or the flow of electric current. मतलब इलेक्ट्रिक करंट टू वे होता है. किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलिसिस में. बट इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है एंड दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. यहाँ पे फ्लो ऑफ आयंस होता है इलेक्ट्रिक करंट. सो दैट इज वंस अगेन अ मेजर डिफरेंस. यस यस. किसमें? आयंस के वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. किसमें? मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोलाइट में. यस, यू कैन से दैट. यस.
इनका मूवमेंट। हाँ, तो आयंस के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस या फिर कम होते हैं तभी तो आयंस बनते हैं। आयंस के बनने के पीछे का रीजन भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। 281 था ना वो पहले, तो वो 28 हो गया। नहीं, बैलेंस कहाँ से हुआ? केमिकली बैलेंस हो गया ना। इलेक्ट्रिकली तो वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज 11 का है और शेल्स में नेगेटिव चार्ज 10 का है। तो देर इज अ इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस क्रिएटेड। एग्जैक्टली, और यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो केमिकल इम्बैलेंस या बैलेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और इसकी वजह से ये चार्जेस फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So chemical compounds behave differently when an electric current is passed through them. Some compounds conduct electric current in aqueous solution state or in molten state, but not in the solid state, and are decomposed by the passage of electric current. बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो एक्वेस सोल्यूशन में, जैसे मैंने यहाँ पे डिसोसिएशन लिखा है, ये डिसोसिएशन क्या है? breaking up of an ionic molecule to form ions, that is dissociation, but it can happen in two ways. या तो इसको पानी में डाल दो सॉल्ट को, तुरंत डिसोसिएशन हो जाएगा। तुम्हें लगा है तुमने सॉल्ट पानी में डाला और मिक्स किया तो सॉल्ट अभी भी सॉल्ट है? नहीं, सॉल्ट हैज कन्वर्टेड इनटू आयन ऑलरेडी। और ये कौन उसको हेल्प कर रहा है आयंस में कन्वर्ट होने के लिए? वाटर, because water has high dielectric constant, so it can easily break away an ionic compound into its separate ions, positive and negative, जो हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में, बॉन्डिंग। हेलो, यस, आप कौन बोल रहे हैं? अभी राइट टाइम नहीं है, आप थोड़ा बाद में फोन करिए। या सो जैसे ही सॉल्ट को पानी में डालते हैं आयंस बन जाते हैं, दैट इज आयंस गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर आयोनिक कंपाउंड्स। बट अगर वही सॉल्ट को मैंने हीट कर दिया तो क्या होगा? ये हाँ, सिर्फ सॉल्ट, ओनली सॉल्ट, पानी में डाल के नहीं, ओनली सॉल्ट को मैंने हीट किया। सॉल्ट ऑल्सो एज अ मेल्टिंग पॉइंट, तो एक बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जाके वो मेल्ट हो जाएगा और वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। और मोल्टन स्टेट में भी आयंस क्रिएट होंगे एंड दैट इज नोन एज थर्मल डिसोसिएशन। So dissociation is of two types. One, just simple dissociation by dissolving in water due to water's high dielectric constant, and second is due to heat energy. So ये जो ionic compound है NaCl, उसके दो ions के बीच का जो electrostatic force है, strong electrostatic force, उसको break करने के लिए हमें कोई energy की जरूरत है। Water वो provide करता है when you dissolve, और heat भी वो provide करता है। So with any means, if you are able to create ions that is in molten state or aqueous solution state, you will be able to conduct electricity with that particular compound. ठीक है? For example, the passage of electric current through copper chloride solution decomposes it to metallic copper and chlorine. Such chemical compounds which conduct electric current in molten or aqueous state are called electrolytes. Some compounds do not conduct electric current at all, whether in solid state or aqueous solution state. They are called non-electrolytes. For example, sugar solution. Sugar solution does not conduct electricity because there are no ions, only molecules. Chemical decomposition of a chemical compound can be brought about by using electric current. Such a chemical process is called electrolysis.
there is a difference between metallic conductor and electrolytic conductor given over here. There are 3 points. In metallic conductor, we have taken example of copper wire. Flow of current consists of single stream of electrons flowing from negative pole to the positive pole. Electrolytic conductors, for example, copper sulfate solution. Flow of current consists of 2 streams, one of the positive cations flowing towards negative cathode and other of negative anions flowing towards positive anode. समझ में आया फर्स्ट डिफरेंस? पहले में क्या था? सिंगल स्ट्रीम था इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरे में मतलब इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट में 2 स्ट्रीम. Metals both in solid and liquid state are good conductors of electricity. Electrolytes are good conductor only in aqueous solution or in molten state, not in solid state. No change of form or in composition occurs during a conduction of electricity. This is only a physical process. New products are formed at the electrodes in the process of electrolysis. This involves chemical changes. So electrolysis is a form of a chemical change because new products are formed. But conduction of electricity through metallic wire is a physical process. No new substances are formed. Some important terms. Electrolysis. It is the process of decomposition of a chemical compound in aqueous solutions or in molten state accompanied by a chemical change by using direct electric current. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर इन्वॉल्व. इट इज द प्रोसेस ऑफ, पहली बात तो हो क्या रहा है? डीकम्पोजिशन हो रहा है. किसका डीकम्पोजिशन हो रहा है? किस फॉर्म में हो रहा है डीकम्पोजिशन? एक्वेस सोल्यूशन फॉर्म या फिर मोल्टन स्टेट में? और डीकम्पोजिशन के साथ साथ क्या हो रहा है? न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है. बट ये किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. और ये नेचर क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? डायरेक्ट करंट. So there is a question and there is a explanation also in this chapter whether alternate current can make the electrolytic process happen or not. Alternating current. Alternating current क्या होता है? और direct current क्या होता है? Alternating current मतलब the current whose magnitude and direction changes multiple times in a single cycle. ऑल्टरनेट करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सेम नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. ठीक है. और ऑल्टरनेट करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है. कभी वो 0 होता है, कभी मैक्सिमम होता है, फिर से 0 हो जाता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर 0 हो जाता है. तो इट कंटिन्यूअसली चेंजेस. क्या उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है कभी? ठीक है. Let me show you. So suppose I have a, you know what is this? It's known as electrolytic cell. In electrolysis we don't call it a beaker. Also it's not made up of the beaker material. इसका material भी अलग होता है. ठीक है. So suppose ये electrolytic cell है और ये तुम्हारा electrolyte है और ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इसको. टर्मिनल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स. तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये स्पेसिफिक मटेरियल्स के होते हैं. इलेक्ट्रोड्स भी 2 टाइप के आते हैं. एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं. ओए, ये नींद आ रहा है क्या तेरे को? हाँ, सुबह कितने बजे उठता है तू? ओहो, बहुत जल्दी उठता है यार. और दोपहर को नींद मारने की आदत हो गई ना, अभी बहुत दिन छुट्टी लेके. स्कूल कितने बजे तक रहती है तेरी? हाँ, हो 1 o'clock. और तुम लोग की, रायन वालों की? तुम लोग ही मजदूर हो. ये तो सब ऐश कर रहे हैं यहाँ पे 1 o'clock तक.
हाँ, फिर 1 o'clock के बाद और सोता है या नहीं सोता है? सो के आने का इधर, समझा ना? घर पे नींद लेने का अच्छे से, और फिर यहाँ पे आने का। यहाँ पे ऐसा ऐसा आइस करेगा ना, मेरे को जस्ट इमेजिन, मेरे प्लेस पे बैठ के देख मेरे को कैसा फील होता रहेगा। कैसा फील होता है मेरे को? फील्स रियली शिटी मैन, टू सी पीपल snoozing in front of you like you are doing right now. Feels really bad. क्या करूं मैं, मर जाऊं? नहीं पढ़ा हूं ये सब। हाँ, इलेक्ट्रोड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। ग्रेफाइट इनर्ट है। गलत बोला, एक्टिव है। ग्रेफाइट एक्टिव है, पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। प्लैटिनम ऑन द अदर हैंड, वो इनर्ट है, प्लैटिनम पार्ट नहीं लेता। कॉपर एक्टिव है, कॉपर पार्ट लेता है। ये ये सपोज मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, अब बता करते क्या है? सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। किस में? ये इसके अंदर। हाँ, होते हैं ना, अगर ये एक्टिव हुआ तो। या आई आई कैन मेक मिस्टेक्स लाइक दैट, तो या हो सकता है। मैंने ग्रेफाइट एक्टिव इसलिए बोला बिकॉज तुम्हें याद होगा, हमने जब मेटलर्जी चैप्टर किया था तो उसमें एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड थे जिसको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता था। So I thought they are taking part in reaction. No, they were burning out. Yeah, so graphite is carbon. Graphite is an allotrope of carbon. Yeah. इलेक्ट्रोड में केमिकल चेंज नहीं होता? होता है ना? हाँ, क्यों नहीं होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। एक इलेक्ट्रोड दोनों टाइम पे दोनों चीज कर सकता है, करंट भी सप्लाई कर सकता है और केमिकल रिएक्शन में पार्ट भी ले सकता है। नहीं फर्क पड़ता है, व्हाट यू वांट टू कैरी आउट उसके ऊपर फर्क पड़ता है। इफ यू वांट टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब है तेरे को अगर एक इम्प्योर मेटल को प्योर बनाना है तो तू एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर। उससे होगा ये कि जो दो इलेक्ट्रोड है, दोनों एक्टिव है, दोनों कॉपर के है, एक इम्प्योर मेटल से बना है थिक, और एक थिन प्योर मेटल की शीट से बना है। तो क्या होगा कि सारे इम्प्योर मेटल से प्योर मेटालिक पार्टिकल्स निकल के इलेक्ट्रोलाइट में जाके प्योर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और उधर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। सो प्योर इलेक्ट्रोड धीरे 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 थिक हो जाएगा और इम्प्योर धीरे धीरे थिन हो जाएगा और नीचे वो सिर्फ एनोड मड रह जाएगा। हाँ, उसने ये किया कि उसने अपने जो आयंस, अपने जो एटम्स थे उसको आयंस में कन्वर्ट किया और इलेक्ट्रोलाइट में डोनेट किया उसने, और वो आयंस एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर हो गए। मतलब इनर्ट नहीं कर पाते, इनर्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, आयंस या फिर एटम्स नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। ठीक है। सो सपोज ये बैटरी लगी हुई है। ये जो बैटरी है, जनरली बैटरी जब हम यूज करते हैं तो इट इज अ सोर्स ऑफ डीसी करंट। कोई भी बैटरी डीसी करंट ही देता है। ठीक है, बैटरी एक होता है, ऑल्टरनेटर भी होता है, बट दैट्स नॉट, यू डोंट कॉल इट अ बैटरी। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पे अगर मैं बैटरी को हटा के, अच्छा मुझे बताओ इसका नाम क्या है? एनोड। और ये वाला, why you call it anode, this one, this guy? It is connected with positive terminal of the battery and that's why it is called anode. And this is cathode for the same reason, because it's connected with the negative terminal of the battery. ठीक है, इतना क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं यहां पे
मैंने एसी का सप्लाई दे दिया। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में मैंने क्या बोला था, उसका पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इट इज नॉट कांस्टेंट, मींस उसका अगर तुम ग्राफ देखोगे एसी का तो इट इज लाइक दिस। हाँ, proper? Did I make it proper? I don't know. Yeah, it is that proper. Means it is known as a sine wave. साइन वेव क्यों? क्योंकि साइन थीटा, साइन थीटा पता है ना, उसका भी ग्राफ ऐसा ही है, सेम। साइन की वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, और फिर एक पर्टिकुलर एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। वो कितनी है? 1। कौन से एंगल पे होता है ये? π/2, 90। π/2 तुम्हें समझेगा नहीं। 90 डिग्री। यस, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे मैक्सिमम, फिर से आगे बढ़ाते जाओगे तो साइन की वैल्यू कम होती जाएगी और फिर जीरो हो जाएगी वापस। कौन से एंगल पे पता है? 180 पे। फिर से आगे अगर एंगल बढ़ाते जाओगे तो 270 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिख रहा है यहाँ पे 270 पे मैक्सिमम हो गई वैल्यू, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक मिनट। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, 0 से 1, उसके बीच में फ्लक्चुएट करती रहती। इसलिए ये वेव को हम साइन वेव बोलते हैं। बिटवीन 1 एंड -1, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। इसलिए हाँ, उससे ऊपर नहीं जाती, साइन थीटा की नहीं जाती, इसलिए इस वेव को हम साइन वेव बोलते हैं। और ऐसे साइन वेव बहुत सारे वेव्स हैं, ये सिर्फ साइन थीटा से रिलेटेड नहीं है। तुम्हारा जो एसी है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका भी वेव सेम होता है। मतलब एसी वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वेव है, दैट बिकम्स मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड, देन बिकम्स जीरो एंड बिकम मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये एक साइकिल में for once this will become anode, and then this will become anode, and this will become cathode. तो कैथोड एनोड, एनोड कैथोड, कैथोड एनोड, ये कंटिन्यूसली स्विच होता रहेगा उनका पोलैरिटी। पोलैरिटी फिक्स थोड़ी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। कभी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। और ऐसा कितनी बार होगा पता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? यू नो, 1/50, or frequency of alternating current 50 hertz. That means in 1 second 50 times the polarity changes. एक सेकेंड में कैथोड अपनी पोलैरिटी 50 टाइम्स चेंज करके एनोड बन जाएगा, और एनोड अपनी पोलैरिटी चेंज करके 50 टाइम्स एक सेकेंड में। एनोड और कैथोड में चेंजेस रिवर्सल आते रहेंगे। तो बेचारा जो अंदर रहेगा, वो क्या नाम है उसका, आयन, वो सोचेगा मैं यहाँ पे जाऊं या यहाँ पे जाऊं, वैसा देखता ही रहेगा, वो देखते देखते हिलता रहेगा। वो आयन कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा वो, इट वोंट एंड अप एनीवेयर। सो विल इलेक्ट्रोलिसिस हैपन? दैट वाज माय क्वेश्चन, यू टोल्ड या इट कैन। नाउ इट इज क्लियर, राइट? कैन नॉट हैपन, इसलिए डायरेक्ट करंट यहाँ पे दिया है। ओ माय गॉड, डेफिनेशन में हूं मैं, जस्ट डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन हो गया डायरेक्ट करंट क्यों बोला है। ऑल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता, यू कैन नेवर गेट द यील्ड, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रोलाइट्स, यस। सर एसी करंट का कोई एग्जांपल है क्या? हाँ, तुम्हारे घर पे जो सप्लाई है वो एसी करंट है। तुम्हारे घर पे और जितने भी सो अप्लायंस है वो सब एसी ऑल्टरनेटिंग करंट से ही चलते हैं। और सर बैटरी डीसी करंट है। एग्जैक्टली। बैटरी, सेल्स, बैटरीज, ये सब डायरेक्ट करंट में आता है। कार की बैटरी, फिर तुम्हारा जो इन्वर्टर होता है ना, उसकी बैटरी, they are all types of DC currents. एंड सर व्हाट अबाउट द रिचार्जेबल बैटरीज? DC currents, मोबाइल का बैटरी DC करंट, लैपटॉप का बैटरी DC करंट। सर बट हम उसको वापस रिचार्ज भी तो करते हैं ना। हाँ, तो दे आर रिचार्जेबल।
दे आर रिचार्जेबल, मतलब वापस तुम उसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकते हो, इसलिए बैटरी को हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। एक्यूमुलेटर मतलब दे एक्यूमुलेट द चार्ज. So there are certain batteries which are rechargeable, but that has nothing to do with alternating current. We have whatever chargers we are using, it has one arrangement where it converts DC to AC or AC to DC, I'm sorry, for recharging. You understand? Yes, sir. Thank you, sir. So electrolytes are compounds which either in aqueous state or molten state allow electric current to pass through them. Electrolytes can be electrovalent compounds. इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयोनिक, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, composed of metals and non-metals, or polar covalent compounds. You know what are polar covalent compounds from chemistry chapter 2, chemical bonding? What are polar covalent compounds? Sorry? They are formed by unequal distribution of electrons. हाँ, क्या बोल रहा है? They are type of covalent compounds, you are right, but what are they? फेंका, कुछ तो फेंका तूने, लपेटा मैंने, तूने फेंका मैंने लपेटा, हाँ यस, और कुदीप, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सुन लिया, नहीं सुना? अच्छा, चार्जेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली मींस, एग्जांपल दो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. ओके, so how are the charges not distributed equally? Why are they not distributed equally? You are right. The constituent of a polar covalent compounds are either slightly positive or slightly negative or both. Because of the slight positive and slight negative nature of the constituents of polar compounds, when they share electrons, these electrons are not equally shared, or not equally shared, equally distributed among both the constituents. So the slightly positive particle or constituent of a polar compound will have more attraction towards electrons than the other one. So electrons का sharing जब unequally होता है, ठीक है, तब पोलर कंपाउंड बनते हैं. इसके एग्जांपल एक तो वाटर है सबसे फेमस, दूसरा है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. सो इफ यू रिमेंबर, मैंने जब पोलर कंपाउंड्स पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था कि देयर इज अ स्लाइट और सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. यू रिमेंबर? रिवीजन करवा रहा हूं. स्लाइट और सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. तो अगर तुम हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक टेबल था. यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, बट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज जस्ट अ प्योर नंबर. पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सिर्फ एक नंबर होता है, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, एंड इट इज जस्ट अ टेंडेंसी. टेंडेंसी टू डू व्हाट? Tendency to attract the shared pair of electrons towards itself. Higher electronegativity means higher tendency of attracting the shared pair of electron towards itself. Lower electronegativity means lower tendency. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शायद मैंने उल्टा बोला. लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एक टेबल में दी थी, तुम्हें सेकंड चैप्टर में बुक में मिल भी जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा. आई थिंक पीरियोडिक टेबल में ही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और उसमें अगर तुम देखोगे, देयर इज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड दस दीज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर क्रिएटेड. तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में तुम्हारा HCl आता है और H2O आता है, और हाइड्रोजन के साथ खैर कोई भी एक नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल या एटम को ले लो तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा वो.
But on the other hand, there is one compound which is CCl4. You know CCl4, उसका नाम क्या है? CCl4. What is CCl4? Carbon tetrachloride. What is the nature of carbon tetrachloride? Is it covalent? Yes, it is covalent because it is formed between carbon and chlorine. Both are non-metals. So it is formed by mutual sharing of electrons. है ना? कार्बन की वैलेंसी, फर्स्ट वीडियो तो देखा नहीं है तुम लोगों ने, शायद किसी ने देखा होगा. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन यहाँ पे शेयर कर लेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, है ना? ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ था. कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, बट इज इट पोलर? Is it polar? No, it is not polar because carbon and chlorine के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, that is very small, almost zero, very small. That's why it does not form a polar covalent compound, and because of that, carbon tetrachloride does not conduct electricity. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे इलेक्ट्रोड्स डाल के, तो उसमें कंडक्शन होगा ही नहीं. कंडक्शन नहीं होगा तो कैन वी कॉल इट एन इलेक्ट्रोलाइट? नो, इट इज नॉट इवन एन इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं. एसिड्स में मोस्टली सारे एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑल आर पोलर इन नेचर. H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl. बेसिस, मोस्टली सारे बेसिस पोलर होते हैं. पोलर नहीं होते, वो तो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, आयोनिक होते हैं, क्योंकि एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक रेडिकल होता है. एक मेटालिक आयन और एक नॉन मेटालिक रेडिकल, NaOH, KOH, NH4OH, CaOH ट्वाइस. सॉल्ट्स, मोस्टली सारे सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. क्यों? क्योंकि आयोनिक होते हैं नेचर में. तो सॉरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस तो इसमें बहुत ही क्लियर है. ऑल मेटल एंड नॉन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. हाँ, उधर रखना. Electrolytes are of two types based on their conductivity and ability to dissociate into ions. एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब, सॉरी, जल्दी नहीं, ज्यादा. हाँ, द क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएटेड आयंस इज टू मेनी. लार्ज नंबर or large concentration of dissociated ions results into strong electrolyte. Sodium chloride is a strong electrolyte. But there are certain weak electrolytes also. That means the quantity or concentration of dissociated ions is less. ठीक है? जल्दी नहीं, ज्यादा. हमेशा याद रखना, क्वांटिटी रेट पे मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी पे मैटर करता है. ठीक है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पढ़ा था हमने अभी. It is a compound which neither in solution nor in molten state allows an electric current to pass through it. What is the reason behind it? Absence of ions. Presence of only and atoms and molecules. It also does not decompose at the electrode. Decompose होगा ही नहीं ना. कैसे होगा decompose? पहले डिसोसिएशन तो होना चाहिए, फिर डीकम्पोज और केमिकल चेंज होगा. ये सब चीजें बाद में होती है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट हैव आयंस इवन इन सॉल्यूशन. दे कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स. So there is a difference between strong and weak electrolyte. 5 differences with examples. Examples में एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स भी दिए हुए हैं. तो कुछ सॉल्ट्स, कुछ बेसिस और कुछ एसिड्स है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है. क्यों? बिकॉज आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है. उसमें आयंस है, मॉलिक्यूल्स भी है. आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली लो है, इसलिए बल्ब ग्लो होता है उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे, बट वीक, डिम ग्लो होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयंस होते नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स. डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर में देर इज नो अदर डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटी, जस्ट H2O in liquid form.
जैसे उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर letting millions of ions enter the water and those ions will allow the electric current to flow through it. वहां पे हमने 2 drops और 3 drops of HCl डाल दिया, it will become electrolyte because वो 2-3 ड्रॉप में, तुम्हें पता ही है ना, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23, मोर देन मिलियंस, राइट? सो अगर इतने सारे पार्टिकल्स अंदर एंटर करते हैं विच आर बिहेविंग एज आयंस, देन इट विल कंडक्ट. इसलिए डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट हमें जब भी एक्वस सोल्यूशन लेना है जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हो, तो हम वाटर में अ पिंच ऑफ सॉल्ट या फिर ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. वाटर में इम्प्योरिटी कौन सी है? शुगर वाटर में भी तो आयंस नहीं होते. हाँ, डिस्टिल्ड वाटर तो विल नॉट हैव. नहीं बनेगा ना. जैसे तो डिस्टिल्ड वाटर H2O है सिर्फ, ठीक है. अब ये H2O में सारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल स्टेट है इसका, ये नेचुरल स्टेट है. इसमें पोलार नेचर तो है, लेकिन ये पोलार नेचर एग्जर्ट किस पे करेगा? ये पोलार नेचर कोई तो थर्ड पार्टी चाहिए ना, जिसके ऊपर H प्लस और O2 माइनस अपना फोर्स एग्जर्ट कर सके. वो थर्ड पार्टी है क्या? हाँ, उन दूसरों को डिसोसिएट करने के लिए पोलार नेचर की जरूरत होती है. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. तुमने पढ़ा था कहीं खुद डिसोसिएट होता है? क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं होता है. नहीं तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं दिया होता यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में. डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट डिसोसिएट बाय इटसेल्फ. नहीं, सिर्फ वाटर खुद, मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन तुम बोल रहे हो. In the absence of impurity, it's not possible. You have to create an electrolytic imbalance in water to make them dissociate. अब कैसे imbalance create करोगे? Electrolytic imbalance. You add a foreign substance like salt into it. डाल दिया. अब क्या हो गया कि जैसे ही NaCl डाला, Na और Cl अलग अलग होना शुरू हो गए. नहीं, हो गए बताता हूं मैं कैसे. पता है, पहले Na प्लस Cl अलग अलग हो जाएंगे. Na प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? O2 माइनस को. और Cl माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? H प्लस को. तो मतलब अब उनका भी डिसोसिएशन शुरू हो गया, क्योंकि Na पॉजिटिव है और O2 स्लाइटली नेगेटिव है और H स्लाइटली पॉजिटिव है. क्यों कम चांसेस होंगे? बहुत अच्छे चांसेस होंगे. Without any impurity in distilled water, it will be very difficult to dissociate. But if you add an impurity in distilled water, these impurities will kickstart the dissociation. हाँ. कैसे? उसका कैरियर कौन है? दूसरे कोई आयंस नहीं है क्या वहां पे? कॉन्सेंट्रेशन तो देखो, तुमने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है सिर्फ वाटर में, दूसरे भी तो आयंस है वहां पे. H प्लस भी है, O2 माइनस भी है. ये सब लोग काम करेंगे, नहीं रोकेगा. तो इसमें आता है एक प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. एक नया सीन आता है इसमें. प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मतलब तुमने वो देखा होगा ना, कौन सी सीरीज? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इसमें बोलते हैं जो पहले वो रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज पता है? वैसे ही एक इलेक्ट्रोलिसिस में उसकी उल्टी सीरीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे बॉटम में होता है वो इजीली डिस्चार्ज होता है. एम आई राइट? जो सबसे बॉटम में होता है वो इजीली डिस्चार्ज होता है. तो अभी तब हमें देखना पड़ेगा कि बॉटम में कौन है, Na प्लस है या H प्लस है, O2 माइनस है या Cl माइनस है. तो फिर उसको मौका मिलेगा डिस्चार्ज होने.
ऐसा होता है। हो सकता है, हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब कॉन्सेंट्रेशन H+ का बहुत ज्यादा है। हाँ देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा तुमने, मैं तुम्हें आंसर देता हूँ। इट्स अमेजिंग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन उसने ये पूछा कि Na इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में तो सबसे ऊपर कौन आता है? सोडियम। हाँ, सोडियम पोटेशियम दोनों। हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो सोडियम क्यों नहीं डिस्चार्ज होता इलेक्ट्रोड पे? दैट्स योर क्वेश्चन। हाइड्रोजन क्यों डिस्चार्ज होगा, सोडियम क्यों नहीं डिस्चार्ज होता? सो Na to become Na plus and to release one electron is very easy for Na. Very easy. Why? Because it's highly Can reactive. Highly reactive मतलब very easy for it to lose electrons. अब इलेक्ट्रोलिसिस में तुम्हारे पास Na नहीं है, Na प्लस है, और उसको करना क्या है? इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करना है उसको? इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? उतना ही डिफिकल्ट होगा। जिस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में कन्वर्ट होना इजी है, उसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करके एटम में कन्वर्ट होना उतना ही डिफिकल्ट होगा। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर Na प्लस। आर यू गेटिंग मी? वाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है ना, वो गेन नहीं करना चाहता। गेन करेगा क्या कभी? सोडियम, सोडियम का टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। इसलिए तो उसको हम लोग हाईली मेटालिक बोलते हैं। We can easily lose electrons, but will it gain electron? No. केमिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरह से बैलेंस होने की कोशिश करें। नहीं, नीचे वाले में तो वो इलेक्ट्रिकली बैलेंस होने का कोशिश कर रहा है, और जो आपने ऊपर लिखा है वेरी इजी, उसमें वो केमिकली बैलेंस होना। एग्जैक्टली, तो उसके लिए केमिकली बैलेंस होना ज्यादा इजी है रादर देन इलेक्ट्रिकली बैलेंस होना। इलेक्ट्रिकली बैलेंस होना बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए, केमिकली बैलेंस होना बहुत इजी, क्योंकि वो केमिकली रिएक्टिव है ज्यादा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर होता है, मतलब इट्स नॉट वेरी, इट कैन नॉट इजीली गेट डिस्चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रोड। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मोल्टन सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और तुम उसमें इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, तो कौन डिस्चार्ज होगा फिर कैथोड पे? Na, क्योंकि और कोई ऑप्शन है क्या? तो कौन बढ़ेगा आगे डिस्चार्ज होने के लिए? सोडियम। ऐसा। बट अगर ऑप्शन है, अगर हाइड्रोजन भी है उसके कंपटीशन में, तो किसको मौका मिलेगा? हाँ, ऐसा है। तो ये पूरा चैप्टर में यही है स्टोरी सारी, थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है अपने को। We'll come to that. We'll come to all of it. Yeah, but distilled water clear हुआ क्या? It does not self-ionize that way. It does self-ionize, but in the presence of an external impurity, which make that process kickstart. And once that डिसोसिएशन शुरू हो जाए, आयंस बनना शुरू हो जाए, आयंस बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा एंड इलेक्ट्रोलिसिस होगा। दैट्स व्हाई द इम्प्यूरिटी इज रिक्वायर्ड। Alcohol, kerosene, carbon disulfide, cane sugar, benzene, glucose, urea, mostly these are all organic solvents which are non-electrolytes. They do not conduct electricity because they do not contain any ions, they contain only molecules. Then electrolytic cell, which I was talking about, it is a non-conducting vessel. Ceramic का बना होता है वेसल, पूरा सिरामिक या ग्लास का बना होता है, ग्लास भी होता है बहुत बार। नॉन कंडक्टिंग वेसल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है। कंडक्टिंग वेसल क्यों नहीं यूज करते? मेटल का क्यों नहीं वेसल यूज करते? टर्मिनल से पहले तो वेसल में
हो सकता है वेसल पार्ट ले ले इलेक्ट्रोलिसिस में, हो सकता है वेसल से हमको शॉक लग जाए, वेसल को उठाने का शॉक लग गया। हैंडल कैसे करेंगे वेसल को? हाउ कैन वी हैंडल इट इफ इट इज कंडक्टिंग मटेरियल? दैट्स व्हाई वेसल इज ऑलवेज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टामीटर, उसको वोल्टामीटर भी बोलता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कैसे? व्हाट वी सप्लाई through battery, and what it is used for? It is used for converting ions into atoms. Ions into atoms मतलब chemical change, क्योंकि ions किस में थे? कंपाउंड में थे। कंपाउंड से हमने क्या बनाया? एटम। कंपाउंड से एटम बनना मतलब केमिकल चेंज होता है। सो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। So that is how electrolytic cell is different from a usual cell or a battery. What is the difference between a battery and an electric cell? Battery converts chemical energy into electrical energy. Electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy. छोटे छोटे पॉइंट्स है बट बहुत सारा पर्सपेक्टिव क्लियर होता है once you discuss only. Then electrochemical cell. It is a device used to convert chemical energy into electrical energy, which we were talking about. Electrochemical cell. That battery cell. Example, simple voltaic cell, Daniell cell, etc. Electrodes. Two metal plates or wires or graphite rods or gas carbon rods immersed in the electrolyte through which the current enters and leaves the electrolytic cell are called electrodes. दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। ये मेटालिक प्लेट्स भी हो सकते हैं, वायर भी हो सकते हैं, ग्रेफाइट के रॉड भी हो सकते हैं, गैस कार्बन विच इज अनदर मटेरियल नॉट एग्जैक्टली ग्रेफाइट, ठीक है, गैस कार्बन के रॉड्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरे मेटल या प्लैटिनम या कॉपर के रॉड्स भी हो सकते हैं, विच आर इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच द करंट एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स. Anode is connected to positive terminal of the battery. Cathode is connected to negative terminal of the battery. When the current is turned on, cathode becomes negative electrode by which electrons enter the electrolyte, and anode becomes positive electrode by which electrons leave the electrolyte. तो यहाँ पे एक सिंपल नेमोनिक बताया है कैसे याद कर सकते हैं. एनोड में you can always remember ADD, anode. It has got A and D. Means add, means positive. ऐसे anode positive तो cathode negative. anion anion anode पे जाता है और cation cathode पे जाता है. तो anion अगर positive terminal के तरफ जा रहा है तो खुद anion negative होगा. That's why anion is negative. Cation means anion is a negatively charged ion. Cation goes to cathode, which is negative electrode. So cation is positively charged ion. A to A, C to C. Ions. The atoms or group of atoms which carry a positive or a negative charge are known as ions. Atoms which carry positive charge are called cations, and atoms which carry negative charge are called anions. पता है हमको. ओके, ऑक्सीडेशन ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. Oxidation is also defined as a chemical process which involves addition of oxygen or removal of hydrogen, which is our old you can say definition of oxidation. अभी एक चीज पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से मुझे बताना. इलेक्ट्रोलिसिस इज अ redox process, true or false? Why? क्या हो रहा है? So can you repeat the question? Electrolysis is a redox process. True or false? तो मेघना ने बोला true और मैं अभी पूछ रहा हूं उसको why.
बोला था तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है उधर जाने के बाद सोडियम आयन सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तो रिडक्शन हुआ ना, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। रिडक्शन कर रहा है और जो Cl होगा वो अच्छा, सोडियम आयन रिडक्शन करता कहाँ पे? कैथोड हाँ, तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पे हमेशा क्या होता है? So since simultaneous oxidation and reduction process happens at cathode and anode, hence electrolysis is a process of redox. It's a redox process, electrolysis. ठीक है, ऐसा पूछ सकता है. So I don't have to repeat oxidizing agent, reducing agent and everything. We already know all this. Okay. अब मैं कुछ important चीजें बताने जा रहा हूँ, which is beginning of our electrolysis. Theory of electrolytic dissociation. तो एक साइंटिस्ट था 1887 में, स्वांते अर्हेनियस, पढ़ा है इसके बारे में? स्वांते अर्हेनियस, इसने एक थियरी दिया जिसको बोलते हैं आयोनिक थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन. According to him, few points he suggested. According to him, an electrolyte on dissolving in water dissociates into free mobile ions. An electrolyte on dissolving in water dissociates into free mobile ions, that is cations, positive ions, and anions, which are negative ions, and allows the flow of an electric current through it. सही है? इसमें कोई गलत बात बोली है क्या उसने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करके वो डिसोसिएट हो जाता है फ्री मोबाइल आयंस में, कैटायंस और एनायंस, और वही अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को थ्रू इट. All ions carry an electric charge and are responsible for the flow of current through the solution. सही है? All ions, they carry electric charge, and the movement of this ion is the flow of electric current, nothing else. The conductivity of the electrolyte depends upon the concentration of ions in the solution. कितने ज्यादा ions है वो determine करता है. क्या किसको डिटरमाइन करता है? कंडक्टिविटी को. इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कौन डिटरमाइन करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर कंडक्टिविटी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस लोअर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस equal the number of negative charges in the solution, and thus the solution is in electrolytic equilibrium. हमेशा कोई भी सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम में ही होगा. क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे. द इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस प्रेजेंट. मतलब उनके बीच में भी जो रेशियो है ना वो हमेशा मेंटेन रहेगा. मतलब for every ionized molecule there will be one unionized molecule in a certain solution. So ratio क्या हुआ? 1:1. For every 100,000 ionized molecules there is only one unionized molecule. So ratio क्या हुआ? 1:100,000. किसी अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग रेशियो होता है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच के, और ये हमेशा मेंटेन्ड रहता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इफ द नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स आर मोर as compared to the number of unionized molecules, that means it's a good electrolyte. It contains more ions, right? That's how it should be. In non-electrolytes such as sugar solution, benzene, etc., there is no ionization, and therefore only molecules are present in the solution. The degree of dissociation is the extent to which an electrolyte dissociates or breaks up into ions. So do we need a higher degree of dissociation for an electrolyte to be a good conductor, or lower degree of dissociation? Higher.
Higher degree of dissociation, more ions, better the electrolyte it will be. Yeah, of course. Yeah, limit means it can dissociate 100%. Some of them. That means that it's a very good conductor, very good electrolyte. Means it never dissociates fully. That is 100%. Yeah, there are. Now it depends. Like तुम NaCl ले रही हो, aqueous solution में डाल रही हो. Was the water before you added NaCl distilled or not? हाँ, तो उस पर भी डिपेंड करेगा. अगर तुम टैप वाटर में NaCl डाल के दे रही हो, तो हो सकता है टैप वाटर में ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो NaCl को कंप्लीटली डिसोसिएट ना होने दे. तो वहां पे डिसोसिएशन की डिग्री हाई रहेगी 99-98%, बट 100% नहीं होगा. सो डिपेंड करता है सिचुएशन. NaCl तुम सॉल्ट जो ले रहे हो वो प्योर सॉल्ट नहीं है. इट हैज सम clay or some sand particles. Will they dissociate? No. So they will be there undissociated. So it depends on what materials you are involving. The electrolyte were always in equilibrium state. Was there ever a case where it was unstable? No. Every electrolyte finds its own electrolytic equilibrium. So electrolytic equilibrium exists between positive and negative ions, and also between the ionized and unionized particles. They are not necessarily equal, but the ratio is always maintained. Yeah, that's the thing. The difference between Arrhenius and modern concept is given here. Arrhenius considered that water ionizes electrolytes, but in modern concept, it is considered that electrolytes are ionic even in solid state, and their ions are held by strong electrostatic forces which make them immobile. Water renders these ions mobility by breaking the electrostatic forces. तो अर्हेनियस ने एक बात बोली थी कि वाटर आयंस क्रिएट करता है, जो गलत है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने हमने बताया कि आयंस तो तभी भी होते हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं. मतलब सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड फॉर्म में होता है तभी भी आयंस है उसके पास. बट आर दे मूवेबल? आर दे मोबाइल आयन? आर दे फ्री टू मूव? नो. Once you put them in water, water gives them mobility. Water makes them free by breaking the forces of attraction. So water just breaks the forces of attraction. It does not make ion. Ions are already there. So water does not undergo, or water does not help ionization. Ionization मतलब ion को बनाना, furnishing ions. Water just helps in dissociation. डिसोसिएशन मतलब आयंस तो है, उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना. सो वाटर हेल्प्स इन डिसोसिएशन, नॉट आयोनाइजेशन. रिमेंबर दैट. अभी समझा? कंडक्शन इन कंपाउंड्स. The electrovalent compounds consist of aggregate of oppositely charged ions held in their positions by strong electrostatic forces of attraction. Hence, in the solid state, an electrovalent compound like sodium chloride cannot conduct electricity despite the presence of ions. When electrovalent compounds are melted or dissolved in water, the forces of attraction between their ions are broken, and the ions are then move about and conduct electricity. Covalent compounds, which are polar in nature, also ionize in aqueous solution and conduct electricity. HCl, NH3, H2O. Characteristic of electrolysis. पहले क्या था ये? Theory of electrolytic dissociation. अब है characteristic of electrolysis. So now we are actually studying about what actually happens during electrolysis. Number one, the passage of electricity through an electrolyte causes the positive ions, that is cations, to migrate towards the cathode, and negative ions, that is anions, to migrate towards the anode. सही है? The number of electrons gained by anode is equal to the number of electrons given or lost by the cathode. जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड सप्लाई करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड
एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड itself, since the exchange of electrons takes place only at the surface of electrodes. मतलब surface is very necessary. इलेक्ट्रोड्स की सरफेस पे हो रहा है ये सारी चीजें, मतलब जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, दैट इज हैपनिंग एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो प्रोडक्ट भी वहीं पे फॉर्म होता है। हाँ, एक्सचेंज मतलब रिस्पेक्टिव एक्सचेंज, नॉट एट द सेम इलेक्ट्रोड, एट डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। एक्सचेंज का मतलब गिव एंड टेक होता है। एनोड पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय नेगेटिव आयंस टू द एनोड और नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज गिविंग, ठीक है। एनोड क्या कर रहा है? टेकिंग, गिव एंड टेक, एक्सचेंज। कैथोड पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड, हु इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स? पॉजिटिव आयंस। कैथोड इज गिविंग, पॉजिटिव आयन इज टेकिंग, एक्सचेंज, गिव एंड टेक। सही है ना? वही चीज गिव और टेक नहीं कर रही है, वही चीज थोड़ी कर सकती है। तो उसे गिव exchange क्यों हो रहा है? तो एक्सचेंज दो लोगों के बीच में होती है बेटा। एक आदमी खुद के साथ थोड़ी, अरे मैंने दे दिया, इस हाथ को दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। वो नहीं, exchange मतलब अगर तुमने किसी को अगर दिया तुमने, तो उसने लिया, उसने लिया, एक्सचेंज हुआ ना चीज। तुम जो सोच रहे हो ना ये इंडियन कॉन्सेप्ट एक्सचेंज, चल हम लोग ये पेन एक्सचेंज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता यार। एक्सचेंज के दो मीनिंग है। जो तू एक जो बोल रही एक्सचेंज, स्वॉप बोलते हैं उसको, स्वॉप, स्वॉपिंग, दैट इज स्वॉपिंग एक्चुअली, दैट्स इंग्लिश, राइट। तो क्या, कौन सा इंग्लिश पढ़ रही है? रायन स्टैंडर्ड इंग्लिश। एक मिनट, एक्सचेंज मतलब आई एम गिविंग यू एंड यू आर टेकिंग इट फ्रॉम मी, दैट इज एक्सचेंज। दैट्स ऑल्सो, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज योर ओल्ड वॉशिंग मशीन एंड टीवी, ये जो है ना, ये इंडियन इंग्लिश पूरी बैंड बजा के रख दी है एक्सचेंज की। एक्सचेंज हैपेंस बिटवीन टू डिफरेंट पीपल, वन गिव्स एंड अदर टेक्स, उसको भी हम एक्सचेंज बोलते हैं, एक्चुअली उसको ही बोलते हैं। मतलब बुक कंफ्यूज हो जाए कि मैं सही तो बोल रहा हूं। हाँ यही है, यही है। बचपन से वो स्वॉपिंग सुनना चाहिए, एक्सचेंज नहीं। ओके, ओनली हाइड्रोजन गैस and metals are liberated at cathode and hence are called electropositive elements. Only hydrogen and metallic elements are liberated at cathode, positive ions, and that's why electropositive बोलते हैं उसको। Only non-metals are liberated at anode and that's why they are known as electronegative elements. The mass of substance produced at an electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte, which is known as Faraday's law of electrolysis. मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में से, उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। मोर करंट पास्ड, मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये मास ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का डायरेक्ट रिलेशन है, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है जिसको। देन सेवेंथ, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये याद है। द रिएक्शन एट कैथोड इन्वॉल्व्स रिडक्शन of cations as they gain electron to become neutral atoms, and at anode there is oxidation of anions as they lose electrons to become neutral. So since both are happening simultaneously, एक बाजू पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, एक बाजू गेन हो रहे हैं, रीडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस redox process. The yeah, of course, it's at anode and reduction at cathode. Reduction means accept करना इलेक्ट्रॉन्स को, जो पॉजिटिव आयंस करते हैं कैथोड पे, और एनोड पे उसका उल्टा हो रहा है। The alternating current does not cause any chemical change when passed through an electrolyte and therefore does not help electrolysis to occur. Electrolysis is caused
बाय डायरेक्ट करंट ओनली, ये भी हमने डिस्कस किया था. Again, these two topics which we have already discussed in chapter number 2, chemical bonding. फिर से वही दो चीजें बताई है यहाँ पे. So now don't make any mistakes and keep it very very clear what is dissociation, what is ionization. ठीक है? Dissociation, the process due to which an ionic compound dissociates into ions in the fused state or an aqueous solution state is called electrolytic dissociation. तो सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन के आयंस कैसे बनते हैं? सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसमें आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन सॉलिड स्टेट में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज फ्री आयंस फॉर्म नहीं होते. फ्री आयंस होते ही नहीं है बेसिकली. व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट और मेल्टेड, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट the slightly negative charged oxygen atoms, सुन ये ध्यान से मेघना, तूने मेरे से ये डिस्कशन किया हुआ है अभी. The slightly negatively charged oxygen atoms and of the polar covalent molecule exerts a pull on positively charged sodium ions. A similar pull is exerted by slightly positively charged hydrogen atoms of the water on the negatively charged chloride ions. Thus the ions becomes free in solution. These free ions conduct electricity. तो वही वो पुल क्रिएट होना चाहिए. पुल क्रिएट होने के लिए या तो डिस्टिल्ड वाटर में पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो या तो सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दो, कुछ भी करो तो तुम्हारा पुल क्रिएट होगा, आयंस जनरेट होंगे, फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. इन मोल्टन स्टेट द हाई टेम्परेचर्स मेल्ट द solid and they weaken the bond between the particles to set the ion free and they are free to conduct electricity. बताना जरूरी है क्योंकि वही चीज अगर घुमा फिरा के पूछी जाए एग्जाम में, फिर तुम्हारे जो नंबर आए अभी सबके केमिस्ट्री में वैसे ही नंबर मिलेंगे हमें. तो इसलिए ये करना जरूरी है ये सब, नहीं तो फायदा क्या है, सब जानते हैं. आयोनाइजेशन ऐसे ही out of the blue, if I raise this question, what is ionization, dissociation, nobody remembers this because this is very like hardly used topic. पूरे केमिस्ट्री में हम इतने खोए हुए रहते हैं वो इक्वेशंस को लेके कि ये दोनों टॉपिक को हम कभी टच नहीं करते इतना इजीली, बट सो दे आर सो इम्पोर्टेंट. विदाउट देम पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है. Okay, what is ionization? There are certain covalent molecules which are not made up of ions, but they form ions when dissolved in water. जैसे कि HCl. These solutions conduct electric current. The process by which polar covalent compounds are converted into ions in water solution is called ionization. For example, hydrogen chloride. Gaseous state में या pure liquid state में HCl unionized होता है, electricity conduct नहीं करता. बट क्योंकि उसका नेचर पोलर है, H स्लाइटली पॉजिटिव और Cl स्लाइटली नेगेटिव है, इसके लिए उनको जब पानी में डालते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को, विच इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट, द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द वाटर एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑन स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड we get H3O plus and Cl minus. Cl अलग हो जाता है. आयोनाइज हो सकते हैं. एग्जैक्टली शुगर नहीं होता आयोनाइज मॉलिक्यूल से, पोलर भी नहीं है वो, ये भी तो मॉलिक्यूल ही थे पहले बट पोलर मॉलिक्यूल थे इसलिए आयोनाइज हो गए. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट आयोनाइज. यहाँ पे आयोनाइजेशन डिसोसिएशन का डिफरेंस बताया. Forming of ions in a polar covalent compound on dissolving in water. ठीक है, इंटेक्स है तुम्हारी बुक में. इसके बाद ये वाले पार्ट के बाद चेक करो, है ना. चलो स्टार्ट करो. अभी कितने क्वेश्चंस है इसमें तुम्हारे इंटेक्स में? 9. इसमें 5 है, उसमें 9 है. वेरी गुड, 9 के 9 करना है. ठीक है, I'll stop the recording.